Are you here for your IELTS listening problem? If yes, so here I am. Keep watching this video till the end and get the different tips to improve or to get your desirable score. So let's get into the video. Authentic rules of listening. Basically, there are 3 steps of listening: pre-listening, while listening, and the post-listening. Basically, it is very important point that if you ignore, it will be problematic for you to improve your listening skills. What these steps are? Basically, you see on the screen, pre-listening. Pre-listening means you need to go through the statement before the audio plays, underline the keywords and think over, imagine that what this audio is going to be. Second one is while listening. Means audio will be going on and you need to think and write down. Meanwhile, audio will not be stopped. And the third one is post-listening. Means whatever you have done, you better recheck yourself. Maybe some error of spellings, any mistakes that you may have gone through. So you need to final review of all the things. Now let's move towards the second, the tip 1. And the tip 1 on the screen, you watch. You will have 30 minutes to attempt 4 listening sections. In the past, ऑडियोज़ में सेक्शन के नाम से वर्ड्स प्रोनाउंस किए जाते हैं. अब 2023 मतलब 2023 या 2024 ऑनवर्ड अब सेक्शन को पार्ट 1 के नाम से इसको प्रोनाउंस किया जाएगा. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. अब यू वॉच, note, listen the instructions very carefully. Of what type of instructions? Now I will show you in this tip. और audio will be played once only. ये भी instruction इसमें दी हुई होगी, clear? Up now, listen carefully. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between an official at a village hall and a woman who wants to hire a public room. Okay ji. Now let's move another tip. Tip 2. In the end of each section, 30 seconds are given to check your answers. और इसको instruction में clearly आपको बोला भी गया है. Listen very carefully. That is the end of Section 1. You now have half a minute to check your answers. Half a minute means 30 seconds. हर section के बाद आपको 30 seconds दिए जाएंगे to go through, review लेना है finally कि मैंने क्या क्या लिखा, कोई mistake तो नहीं जा रही. Need to focus. Tip 3. Before you do each section, you will be given 30 to 45 seconds. For example, एक section के अंदर 8 questions आ रहे हैं. If there are 8 questions, तो 8 questions को read करने के लिए आपके पास time होगा. To look at the questions, use this time to study the questions and try to predict what you might hear. Idea लगाना है कि वो ऑडियो किस बारे में हो सकती है. ठीक है, ऑडियो में चेक करते हैं. Section 2. You will hear a recorded message giving tourists travel information in a large city. First, you have some time to look at questions 11 to 18. ठीक है, 11 to 18. अब इन्होंने 40 seconds का 30 seconds का टाइम दे दिया आपको. अब आपने फाइनली सब चीज़ें रिव्यू ले ली एंड देन यू हैव टू गो अहेड. टिप 4. Always check your spellings. If you make a spelling mistake in the IELTS listening paper, your answer will be marked wrong. अगर आपने ज़रा सा भी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक की, आई की जगह पे ई कर दिया, एस की जगह पे जेड कर दिया, सी की जगह पे के कर दिया, तो ऑब्वियसली
that will be considered like wrong. Each blank consists of 1 mark maybe. तो वो मार्क आपको उसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे. फॉर इंस्टेंस अब यहाँ देखें, आप देखें कार मॉडल नंबर दिया हुआ है ह्यूटन, ह्यूटन के बाद स्पेल भी होगी वहाँ पे. लिसन. Thank you. And the make and model? It's a Houghton Sable. Could you spell the model name, please? Yes, S-A-B-L-E. Oh, फाइन. yes. स्पेलिंग भी बताई गई, तो वो आपने बहुत गौर से सुनना है और उसको फिलअप करना है. ठीक है जी. टिप 5, अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स. अब यहाँ पर बहुत गौर से सुनना है आपने कि वो 15 प्रोनाउंस कर रहे हैं या 50 कर रहे हैं, 17, 70. मोस्ट सिमिलर इनके जो है वो प्रोनाउंसिएशन होती है, साउंड्स होते हैं, तो इस पे आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. 19 या 90. फॉर इंस्टेंस मैन्युफैक्चरर ईयर. अब मैन्युफैक्चरर ईयर क्या दिया हुआ है? हैव अ लुक. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So, from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. क्या बोला इसने? £115, ना कि 50. Oh, yes. Thanks. And when was it made? 1997. क्या बोला? 1997. तो 1997 नहीं, ऑब्वियसली 20 की सीरीज चली है. 19, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम 90 पे चले जाएं? ठीक है जी. नाउ हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. टिप 6, पे अटेंशन टू द नंबर ऑफ वर्ड्स. यू नीड टू राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स. अब आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन. अब देखें लिखा हुआ है क्वेश्चन 6 to 10 कंप्लीट द टेबल बिलो, और इंस्ट्रक्शन कितनी क्लियर लिखी हुई है. राइट 1 word and or a number for each answer. और मैक्सिमम अमाउंट लिखा हुआ है, इंश्योरेंस बेनिफिट्स लिखा हुआ है. ठीक है. नो मोर देन 1 word and or a number. एक वर्ड से ज़्यादा या नंबर से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते. अगर इस इंस्ट्रक्शन को आपने इग्नोर कर दिया और आपने वहाँ लिख दिया 3 words या 4 words या 3 से ज़्यादा नंबर्स लिख दिए, तो वो ब्लैंक क्रॉस कर दी जाएगी, उसके मार्क नहीं मिलेंगे. अब देखें फॉर इंस्टेंस 21 जुलाई. ठीक है. 3 books, ये 2 words हो गए. और अब नंबर बात कर रहे हैं तो $450.50. तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है. टिप 7, you will hear native speakers accents from several English speaking countries in the test. They may include, अब कौन कौन से accents हैं? If you are not keep in touch with such kind of accents, obviously it will be problematic for you to catch their words because they usually chew the words, they mumble the words. You need to catch these sort of things. Have a look. British accent होगा, American, Canadian, Australian या New Zealand, etc. तो इन सब चीज़ों का combination होता है. अब how to practice such kind of accents? You see, ऑनलाइन नेशनल रेडियो स्टेशन, इसको आप सर्च करेंगे और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें इनके एक्सेंट्स को कैसे इनके साथ फेमिलियर होना है. ठीक है जी. Another achieving target, tip 8. In the IELTS listening paper, section 1 and 3 are the conversation between 2 or 3 people. 2 या 3 लोगों के दरमियान आपस से बातचीत हो रही होगी, वो सेक्शन 1 और 3 के अंदर. सेक्शन 2 and 4 are स्पेशली फॉर 1 मेन स्पीकर. ये तो वही आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, वही बता रहा होगा आपको. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू विद द ऑडियो. You say you're building models of the world's ocean systems, but how are they going to be used? And more importantly, when? Some of the data has already helped in completing projects. For example, our understanding of the underlying causes of El Niño events is being confirmed by float data. Understood? 2 speakers. Section 1. You will hear a woman calling an accommodation agency about properties to rent.
First, you have some time to look at questions 1 to 4. अब here only one speaker is there. ठीक है, तो इसी तरीके से हमें स्टेप टू स्टेप आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है. Tip 9. For labeling a map or a plan in IELTS, you may need to follow directions. Directions को follow करना है. Directions को follow करने के लिए आपको 3 मेन स्पेसिफिक vocabulary को फोकस करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दूं, रोड विंड, कोई ऐसी शाहरा, ऐसी रोड जो यूं कर्व में होते हुए यूं इस तरह आ रही हो, उसको हम कहते हैं रोड विंड. सेकंड इसकी जो है वो vocabulary है रोड फॉर्क. 2 मेन रोड्स, 2 शाहराएँ एक बड़ी मेन शाहरा पे आके टच कर रही हो तो उसको हम कहते हैं रोड फॉर्क. स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, देख सकते हैं आप इसको. थर्ड वन है क्रॉस रोड. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि इस ऑडियो के अंदर आपको इजीली अब अपने पॉइंट तक पहुँच सकें. क्रॉस रोड मीन्स 4 मेन शाहराएँ एक ही जगह पे आके मिल रही हों, देयर इज़ नो राउंड अबाउट, उसको हम कहते हैं. ठीक है जी. अब यू सी आई एम गोइंग टू प्ले दिस ऑडियो. अब स्क्रीन पे आप देखें, यहाँ पे मेंशन हो रहा है नंबर 8 ईस्टर्न टावर्स, नंबर 9 ग्रैंडबी मैंशंस, नंबर 10 बर्सबी गार्डन्स. दीज 3 आर द नाइस फ्लैट्स. देयर इज़ अ लेडी, शी हैज़ अ प्लान टू विजिट. अब वो जो एजेंट है वो इनको किस तरह से डायरेक्शन बता रहा है. नाउ शी इज़ एट द ट्रेन स्टेशन. यू सी ऑन द लेफ्ट ऑन द टॉप ट्रेन स्टेशन मेंशन है. यहाँ से वो उसको डायरेक्शन दे रहा है. तो अगर आपके पास पेंसिल है, पेन है, तो उसको आप स्क्रीन पर रखें या फिंगर स्क्रीन पर रखें, और जिस तरह से वो आगे बताते जा रहा है. हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं, सिटी ब्रिज, रिवर रोड, ओल्ड ब्रिज, पार्क. तो ये कीवर्ड्स हैं. इन कीवर्ड्स को आपने जहन में रखना है ताकि आपको डायरेक्शन में ईजिली आप उसको आगे की तरफ मूव कर सकें. अब फिंगर आपने इसी तरीके से मूव करते हुए आगे जानी है. लिसन वेरी केयरफुली. Are you looking to move into a flat soon? I hope so, yes. The thing is, we have a few flats at the moment that we'd like to get rented out by the end of the month. I see. They're all good flats, and at the price you want. There's one in Eastern Towers, one in Granby Mansions, and another in Busby Garden. All 3 are nice blocks of flats. Could you tell me where they are? I'm at the train station at the moment. Eastern Towers, if you're coming from the station, isn't very far. Crossover City Bridge. What he said? Crossover City Bridge. तो अब आपके फिंगर सिटी ब्रिज पे आ जाएं लेकर. Then go left, and where the road divides, you want the right-hand fork. अब उसने कहा turn left, you will find the road fork. Road fork means ऊपर देखें आप, बिल्कुल हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ऊपर राइट हैंड पे 2 आपके पास जो है वो शाहरें आ रही हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों लिखे हुए हैं. तो ये बता रहे हैं, इसको कहते हैं रोड फोर्क. ठीक है, रोड फॉर्क. You'll see Eastern Towers on the left side of the road. अब ये ऊपर की तरफ चले गए, कह रहे हैं ईस्टर्न टावर विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ गए, कह रहे हैं राइट साइड पे आगे जाके लेफ्ट हैंड पे आएगा. तो ये बी इज द राइट आंसर ऑफ ईस्टर्न टावर. It's a lovely building with trees around it. That sounds nice. What about Granby Mansions? The best way to get there from the station is probably to go down River Road. डाउन रिवर रोड. अब आपकी फिंगर या आपकी पेंसिल रिवर रोड की तरफ नीचे की तरफ आई. And then cross over Old Bridge. ओल्ड ब्रिज पे चले गए. Road bends to the right round. अब राइट हैंड पे देखें, रोड बैंड हो रहा है, जिसको हम रोड विंड भी कहते हैं. The park, and if you follow along, you'll find it there on the left side. That's a great location with. ठीक है. अब पार्क के पास जब वहाँ से आए, अब यहाँ से आप बैठे हुए तो आपका लेफ्ट नहीं, बंदा जब वहाँ से आ रहा है गाड़ी में या आ रही है तो उसका लेफ्ट देखें एच ब्लॉक में पड़ेगा. तो ग्रैंडबी मैंशन इज एच. Lovely views of the park. Very nice. And you said there was one more? Busby Garden, yes. Okay, from the station, cross. अब थर्ड स्टेप के लिए हम क्या रहे हैं, क्रॉस ओवर सिटी ब्रिज को हमने क्रॉस किया. अब वो क्या ब्रिज जरा गौर से सुनिएगा. Over City Bridge, keep going through the first crossroads until you come to the second crossroads. Keep going through the first crossroad.
पहला क्रॉस रोड आपने जो है वो उसको वहां से सीधे के सीधे चलते चले जाना है until you reach to the second cross road, जब तक आप सेकंड क्रॉस रोड पे ना पहुंच जाएं. You now have half a minute to check your answers. Now tip 10. The directors for this type of task might be extra building. जब आपको ये अब देखें स्क्रीन पे चेक करें आप लोग. अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखें आपको लिखा है गुडी फार्म, होटल, मार्केट स्क्वायर, हाई स्ट्रीट, चर्च और नंबर ऑफ फेमस लैंडमार्क्स आर मेंशन ऑन द स्क्रीन. अब आप इसमें देख सकते हैं कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स हो सकती हैं मार्क ऑन द मैप और दे माइट बी एक्स्ट्रा ऑप्शंस. आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी होंगे इन अ लिस्ट ऑफ द पॉसिबल आंसर्स. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. जो फेमस लैंडमार्क्स पूछी जा रही हैं सिर्फ आपने वहाँ तक पहुँचना है. गो स्ट्रेट अहेड, टर्न योर लाइट, इट विल बी फेसिंग यू ओवर द राइट साइड या ओवर द लेफ्ट साइड, ये देखना है. एक और पिक देखें आप, टाउन सेंटर टुडे. अब देखें ब्रिज है, कार पार्क, होटल, चर्च, राउंड अबाउट, शॉप, सुपरमार्केट और हाउसेस, ये सब चीज़ें देखें. ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, सब चीज़ें मेंशन है. इसमें से कुछ एक्स्ट्रा होंगे और कुछ जो है वो पॉइंट की बात. देखें लिसनिंग में बेसिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कशंस बहुत होती हैं. हमें अपने पते की बात, अपनी पॉइंट की बात जो हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड, हमें उसको फॉलो करना है. ठीक है जी. अच्छा, बिफोर यू लिसन रीड द ऑप्शंस. एक और आपके देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. बिफोर यू लिसन रीड द ऑप्शंस सेवरल टाइम्स. अगर आपके पास टाइम है तो उसको 3 से 4 मरतबा पढ़ लें अच्छे से, सो दैट यू बिकम फेमिलियर विद द इंफॉर्मेशन कि क्या मुझे मालूमात दी जा रही है. इफ़ यू कैन नॉट डिसाइड बिटवीन 2 आंसर्स, राइट डाउन बोथ, देन डिसाइड लेटर. कभी कभार ऐसा भी होगा आपको ब्लॉक ए लग रहा होगा, कभी ब्लॉक ई लग रहा होगा. फॉर टाइम बीइंग आप दोनों को मार्क कर लें. जब आगे आखिर में 30 सेकेंड्स आपको सोचने के लिए दिए जा रहे हैं, उसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मोस्ट क्लोज है उसको आप जो है वो टिक करके आप लिख सकते हैं आंसर्स. नेक्स्ट स्टेप इज देयर ऑन द स्क्रीन. यू सी, रिमेंबर यू मे हेयर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स रिटन इन द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर पे कुछ और वर्ड होगा और स्क्रिप्ट में कुछ और सिनोनिम होगा. अब देखें, फॉर इंस्टेंस चेयर्स एंड डैश मस्ट बी पाइल्ड अप और उसका सिनोनिम यूज हुआ stepped up. Look at that. Listen very carefully to this audio. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Sure. And the chairs and tables should be Chairs and tables, तो आंसर क्या है ब्लैंक में? Tables must be stepped up. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Piled up. तो ये सिनोनिम इस तरह से यूज होते हैं. And the next one, underline the keywords to catch more appropriate clues for the blanks. अब आपको यहाँ पे blank देखे दिए हुए, such as cupboard, colored pants and a dash, इस तरह का दिया हुआ. तो आपने underline क्या करना है? keywords colored को कर दिया, cupboard, pants को underline कर दिया, ताकि आपने catch करना है कि furniture से related या stationery से related क्या बात हो रही है और आगे क्या बोला. Next one is to teach children about how dash is made up. अब मेड अप इसका कोई सिनोनिम यूज़ हो सकता है, चिल्ड्रन का सिनोनिम हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किड्स. टीच का हो सकता है टू गाइड, इस तरह से. तो ये कीवर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने आगे ब्लैंक फिलअप करनी है. नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज़ ऑलवेज रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब देखें यहाँ पैसिव यूज़ हुआ है, इज़ ऑलवेज रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब और स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स इन चेंज ब्लाइंडनेस. अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन कभी राइट से लेफ्ट पे नहीं जाएगी, सीक्वेंस में हम चलते हुए जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे देखें 32 है, टू इलस्ट्रेट चेंज ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय अ डैश सच एज एन ऑब्जेक्ट. फिर 33, फिर 34, इस तरह से लेफ्ट टू राइट पे चलते चले आएंगे. will be described in order. Notice that there is often a title. ऊपर देखें टाइटल मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया, और a heading at the top of the table to give you more information. अब स्क्रीन पे आप चेक करें कि ऊपर एक्सपेरिमेंट्स इन चेंज ब्लाइंडनेस, तो ये आपके पास सामने हेडिंग मौजूद है. इससे आपको क्लिक होगा कि अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस चीज़ की पढ़ी जा रही है. नेक्स्ट वन इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट. Extra 10 minutes are given to transfer your answers to the separate answer sheet.
whatever you understand, whatever you have done, 30 minutes का आपका listening पूरा complete हुआ. अब 10 minutes आपको extra दिए जाएंगे कि आपने वो तमाम आंसर जितने भी लिखे अब उसको आंसर शीट में फिलअप करना है. अब स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं, सैम्पल आंसर शीट में आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे. अब देखें यहाँ पे पूरा अपने हिसाब से सेंटर नेम, अपना कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखेंगे आप, एंड आफ्टर द डेट, मंथ एंड ईयर, एवरीथिंग विल बी मेंशन ओवर देयर. यहाँ पे ग्रिड मौजूद है, उस पर आपने सर्कल करना है. अब 1 to 40 क्वेश्चंस जो आपने वहाँ पर लिखे, वहाँ जितनी भी आपने ओवर राइटिंग की, गंदगी की, इट्स ओके, डजंट मैटर, बट ये सैम्पल आंसर शीट को क्लियर रखना है. कुछ लोग बच्चे यहाँ पे ब्लंडर करते हैं, बड़ी गलती क्या करते हैं, यहाँ पे वो लिखते हैं नंबर 1 के आगे लिख देते हैं सेक्शन 1. देयर इज़ नो नीड टू मेंशन एनी हेडिंग देयर. डायरेक्ट 1 से 8 तक के आंसर आपने सेक्शन 1 से उठाए, डायरेक्ट 1 2 3 4 लिख दिए. ज़रा सी भी सीक्वेंस ऊपर नीचे गई तो आपके सारे आंसर्स बिल्कुल गलत हो जाएंगे. सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. 29 का आंसर ब्लैंक का 29 नंबर पे ही लिखेंगे आप. तो इस तरह से करते हुए आप इसको 40 को पूरा कंप्लीट करेंगे. Once you go through these sort of tips, you will definitely improve your listening skills, especially related to the IELTS listening. I wish you all the best to get 9 band in IELTS listening test. See you till the next video, and I have a plan to make different tips, different techniques. Inshallah, we will shoot very soon where I will give you the techniques of reading skills. See you. Allah Hafiz.